Good evening, everyone. So today we will be discussing Indian economy and a part of Indian economy syllabus. So I'll let you know first how we will proceed in this class. See, first we will discuss a glimpse of Indian economy. Glimpse of Indian economy at the eve of independence. So when we got independent in 1947, what was the status of economy? And then we will go for planning period. So Indian economy can be divided into three phases, right? So 1951 to 1966. Then 1966 to 80, or we can take directly till 1991 and post-9. Right? So we will be discussing Indian economy at the eve of independence, then planning period. So we will discuss from 1951 to 1991, right? And in 1991, when we faced crisis of Indian economy in 1991, then we went for economic reforms. Economic reforms, often known as liberalization, privatization, and globalization, so also called as LPG reform. Right? So this will be the agenda of lecture. We will be discussing this part today, and in the subsequent class we will go for first we will discuss this and we will discuss this, and we will try discussing crisis of 1991, and then further in the next class we will discuss economic reforms. So this is the idea behind discussing this part of the syllabus of Indian economy, and we have seen questions in prelims exams as well as in mains exams on this topic, and it will give you food for thought. It will give you understanding of how Indian economy behaves and what has been the past of Indian economy. Right? In 1991, when we go for the LPG reforms, then the structure of economy also got changed, and many things changed in Indian economy. But it will give you insight about how we were doing with respect to economy from 1947 to 1991, right? So first we will discuss what is planned economy, right? See, we don't have to write everything. You can make running notes, and whatever I am speaking in the class. See, this is this whatever you are observing on this screen. This is just outline of the class, means subheading or main heading, something like that. But when the lecture will get over, I will give you a PDF in which whatever I am speaking in the class and some additional notes that will be there. So that will be your study material for this class. So you don't, I will not be dictating anything. You can just copy it down from the board, whatever you feel like, and the study material will be given to you in the form of PDF in your official Telegram channel or something like that. Okay? Fine. So what is planned economy? First, we will understand. What is planned economy? So see, planned economy is a social model of growth where central problem of economy, where central problems of an economy
is solved by a central planning authority. Central planning authority. What do you mean by central problems of an economy? See, when we see an economy will be having limited resources, but unlimited wants, right? Unlimited wants. So that there will always be, this is known as a scarcity definition of economics, that the wants are unlimited, but the resources to satisfy those wants are limited. ठीक है, आपको लगता होगा आपके पास 10 गाड़ी हो जाए, 50 गाड़ी हो जाए, but the resources to satisfy those wants are very much limited. So this is known as scarcity definition of economics also. And when we have this, so every economy has three questions, three basic problems of economy. Number one is what to produce. What to produce? Whether we shall produce textile, we shall produce footwears, or we shall produce this electronic goods, right? So this is the problem. One to allocate resources. So you will allocate resources to which sector of the economy? That is the first question. Second question is how to produce. How to produce. Whether we shall go for capital intensive technology or labor intensive technology. What do you mean by capital intensive or labor intensive? See, capital intensive in which heavy use of mechanization and large requirement of investment. So this is capital intensive, heavy mechanization and large requirement of investment. Another one is labor intensive. So more number of laborers are required. So labor intensive. So this will be the second question of every economy. Second basic problem, that is how to produce. How to. And the third problem is, the third basic problem of any economy is for whom to produce. For whom to produce. This is also known as distribution. Distribution. For example, if we are producing a mobile phone, right? If we are producing a mobile phone, so whether we shall produce an iPhone or we shall go for producing this Redmi, Xiaomi, Oppo, OnePlus, right? So distributional thing means you are targeting which sector, which part of the people, which sector, which segment of the people, right? If you are designing or if you are manufacturing iPhone, then you are going for elite class, right? This is for general class, right? So these are the three problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce, right? As you can see here, these are the three central problems of any economy. So if these central problems of economy is being solved by a central authority or a central planning authority, then it is known as planned economy. Otherwise, there are other things also. If you don't want to go for a planned economy, then you can go for a capitalist economy. What do you mean by capitalist economy? In capitalist economy, these three questions, what to produce,
how to produce, and for whom to produce. For whom to produce. These three questions will be solved by market mechanism. Purely on the basis of demand and supply relation, right? So कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये डिमांड और सप्लाई रिलेशंस पे होगा, मतलब प्योरली मार्केट बेस्ड। बट अगर आप यहाँ देखें अगर हम प्लांट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो प्लांट इकोनॉमी में क्या होगा, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, a central authority will be there, and that central authority will plan the allocation of resources as well as the distribution of resources. For example, so I guess plant economy is very much clear to us, right? Plant economy is nothing but a socialist model of growth where the three central problems of any economy will be solved by a planning authority. तो एक central planning authority होगी और वो resources decide करेगी, allocation of resources as well as distribution. देखते हैं types of planning देखेंगे तो आपको clear है, ठीक है? Types of planning में क्या है? Centralized planning, ठीक है? Centralized planning एक central authority होगी, central authority will be there like a central authority will be there just like a central planning commission. A central authority will be there just like a central planning commission. And this central planning commission will assess the economy first, that how much amount of resources it has, and then it will go for allocation and distribution of resources. Allocation and distribution of resources. What do you mean by allocation? Allocation is the same thing. What to produce and how to produce. What to produce and how to produce. Whereas distribution is nothing but for whom to produce. Right? For whom to produce. So this is what to produce, how to produce, and for whom to produce. Right? Now, this is the Central Planning Commission. This is also called as centralized planning is also called as physical planning. What do you mean by physical? Why it is called as physical planning? Because amount of resources. Mind you, amount means it is a in physical terms, amount of resources for agriculture, industries and services sector. Industries and services sector. So amount of resources to these sectors of economy and to different provinces, because mind you, it is a centralized planning, so to different provinces or states, to different producers, right? So this is called as physical planning. In terms of real output, you are deciding, means how much resources will go for. If there is a mineral resource, so mineral resource will go for which province, and then in that particular province to which producer, right? So this is how it will be decided. If coal mining is there, so amount of coal will be allocated to which province, and in that particular province to which particular producer. So this is how it works. The physical planning or the centralized planning, it was practiced by
Soviet Union. Because in 1999 there was Bolshevik Revolution, and after Bolshevik Revolution from 1923 to 1928 was first five-year plan of USSR. So this was the first. This is the example of countries using centralized planning, and then when we look at decentralized planning. In decentralized planning, what happens is province or state plan for distribution as well as allocation, right? So allocation and the distribution of resources. Province plan for it, province or states plan for it, and then this plan is submitted to a central authority. This plan is submitted to a central authority, and then this central authority will take a call on allocation and distribution of resources. I hope I am reaching on this, right? See, centralized planning में कैसा टॉप डाउन अप्रोच है. टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी है, उसने प्लान किया कौन सा रिसोर्स किस सेक्टर को जाएगा, किस प्रोड्यूसर को जाएगा, और फिर उसके बाद से एलोकेशन हो गया. Decentralized planning में क्या होगा, it is bottom up approach. What will happen is states will plan for allocation and distribution of resources, whatever they want and how they will proceed with it, and then it will submit they will submit their plan to a central planning authority, and the central government will take a call on allocation and distribution of resources. वो decide करेंगे कि वो plan को कैसे implement करना है. ठीक है, तो ये decentralized planning है, and the countries which were practicing decentralized planning are Yugoslavia, Hungary in period of 1960s. 1960s they were practicing decentralized planning. ठीक है, अभी इंडिया के बारे में बात करें, पहले इसको समझ लें. What is indicative planning? So, indicative planning is nothing but a government will use mix of market as well as planning. I mean to say, the central government will not control all resources. So the central government will not control all resources, or government for that matter will not control. Government will not control all resources. Public sector enterprises means PSUs, the companies owned by the government will not be playing dominant effect in the market, but through a planned document, government will make their intention clear that what kind of social goals social and economic goals government want to achieve from the market. So government will just indicate its plan through a planned document in the market that what kind of objectives government wants to achieve in terms of social and economic sphere, right? तो गवर्नमेंट क्या इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि अभी नीति आयोग के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, 3 year एजेंडा डेवलपमेंट, राइट? सो दिस काइंड ऑफ प्लान्स आर फॉर इंडिकेटिंग टू द मार्केट दैट गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव these kind of objectives, right? Social or economic objectives. So these are the types of planning. So what is planning? Socialist model of growth. Why socialist model of growth?
because of government intervention, right? Second thing, we discussed types of planning. There are many types, several more, but we are discussing only three, not required for your exam. So centralized planning is nothing but a central planning authority, and that will decide the allocation and distribution of resources. Decentralized planning, bottom-up approach, states will prepare their plan and they will submit that plan to the centralized authority, central government, and central government will take a call on it. Indicative planning, government will not interfere much in the market, government will not control all resources, the companies of government, that is public sector enterprises, they will not be playing dominant effect in the economy, right? But government through a plan document will indicate to the market that what kind of objectives government wants to achieve with respect to social and economic sphere, right? So these are the types of planning. Now, from here, I want you to pay more attention because we will be discussing Indian economy at the eve of independence. So in 1947, what kind of economy we were having, or we? So one statement we can make about this. In 1947, we inherited a backward economy. Or underdeveloped economy. Underdeveloped. Why we are making this statement, or what kind of evidence we are having to support this, is we were having backward agriculture. What do you mean by backward agriculture? 3-4 characteristics of it. Number one, over dependence on agriculture. Over dependence on agriculture. What do you mean by this? 53.1% of GDP was coming from agriculture, and 73% of workforce was involved. What do you mean by workforce? I hope you know workforce is nothing but the population from 15 to 59 years of age who are actively occupied. They are doing some kind of economic activity, right? So this is workforce. So 53%, more than half of our GDP was coming from agriculture, and more than or approximately 3/4 of workforce was involved in it. If we take 73% of workforce, means 80 to 85% of population. 80 to 85% of population was dependent on agriculture. So you can see how much overburden was the agriculture, right? Then to see 53, more than half of GDP, 3/4 of workforce were involved in agriculture, more than half of GDP was coming from it. Then we were not food independent. We were not food independent. What do you mean by food independent? Means we were not producing enough food to meet our requirement, right? So this was the problem. So this is the first point that we can understand how our agriculture was backward. There are a few more characteristics. Very less use of mechanization. Very less use of mechanization. Tractors, trawlers. Very less use of mechanization. Tractors, example, trawlers.
Even we had instances of using wooden plow. So mechanization was very less. What do you mean by less mechanization? What will be impact of it? The productivity will be at lower side. The capacity to produce. Productivity is nothing but capacity to produce. So that will be on lower side because of less mechanization or no mechanization. Tractors, threshers, trawlers, and harvesters, happy seeders. These were missing in Indian economy very badly. So backward agriculture again. One more characteristic: less than 10%. Less than 10% of land was using chemical fertilizers. Chemical fertilizers, pesticides, etc. Right? Chemical fertilizers, pesticides, etc. Chemical pesticides. So they were using manures, etc. The organic thing. But they were not using chemical fertilizers. What will be the impact of it? Again, the productivity will be at lower side. So why backward agriculture? Because we were not producing enough to meet our requirements. Right? Forget about exporting the things. So this was the idea. One more characteristics you can understand that why Indian economy was backward. 80%, more than 80%, or precisely 86% of cropped area was 86% of cropped area was not having assured irrigation. ठीक है, assured irrigation जैसा कुछ नहीं करके उसके लिए कैनाल बनी हुई है, ऐसा कुछ कोई अरेंजमेंट नहीं था. बारिश हो गई तो ठीक है, ग्राउंड वाटर या तो फिर एक्सट्रैक्ट कर लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं. तो इस तरह से था. assured irrigation नहीं था, heavily dependent on monsoon etc. and ground water. So इस तरह की चीजें थी. और ग्राउंड वाटर अभी टोटली मैनेज नहीं था, जिसको जैसा जो जहाँ से जितना वाटर एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है वैसा उसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं. तो दिस वाज द आइडिया ऑफ more than 80% of crop area was not having assured irrigation. Right? So backward agriculture, I wanted you to understand. In 1947, whatever we have inherited from the economy, whatever we have inherited from Britishers, the agriculture was backward. Why agriculture was backward? पहले तो ये था कि जितना भी हम प्रोड्यूस करते थे वो हमारे लिए इनफ नहीं था. ठीक है. 53%, more than half of GDP was coming from agriculture. 3/4, approximately 73% of workforce was involved in it. Agriculture and allied activities. Then too, we were not having food independent. We were not food independent, and we were heavily dependent on imports in terms of food grains. Right? Number one. Number two, we were not using chemical pesticides. We were not using the modern inputs, right? High yield variety seeds, etc. So we were using seeds 14-15 times naturally, and the productivity was at lower side. Then we discussed the assured irrigation was missing in very high crop area. So a very large part of crop area, assured irrigation was missing. So these were the problems. And why underdeveloped economy? Number one is backward irrigation. Number two is poor industrial structure. What do you mean by poor industrial structure? There are three characteristics of it. Poor industrial structure. Three characteristics of it. Number one, absence of basic, key and heavy industries. In India, there was only dominance of cotton textiles, jute and sugar industries.
These were the only industries which were dominant in India. Basic, key and heavy industry. What do you mean by basic, key and heavy? Basic means minerals, minerals, metals, right? Key industries means infrastructure. Roads, railways, telecom, etc. So basic industries were absent, key industries were absent, as well as heavy industries. What do you mean by heavy industries? Like heavy electricals. Example, heavy electricals. Like transformers. Heavy industries like trucks, cement, industrial boilers, which we'll be using in industries. So these things were missing. So absence of basic, key as well as heavy industries. Okay? Basic, key and heavy industries. So these were missing. This was the one characteristic that we can say the industrial structure was very poor. One more thing you can understand. See, the another thing, why Indian economy was backward and underdeveloped. One thing was poor social indicators. What do you mean by poor social indicators? Three parameters will be discussed. Infant mortality rate, literacy, and life expectancy. Life expectancy. Infant mortality rate, if we take data of 1951, it was not the data published by the government, rather it was the data by individual research papers, right? So in 1951, infant mortality rate was 400 out of 1000. I hope you understand. Infant mortality rate, the children who are dying before attainment of 1 year of age. ठीक है, तो 0 to 1 year जितने बच्चों की डेथ हो रही है उसको किसमें काउंट करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में. एंड दिस वाज वेरी हाई इन 1951, 400 out of 1000. In fact, when government first did the survey and came out with its report on infant mortality rate in 1971, it was more than 200 out of 1000. Means approximately 20% or more than 20% of infants were dying. So that was the kind of structure, health infrastructure we were having. Or there were many social norms like that. So the deficiency of awareness, etc. So this was the infant mortality rate between at the time of independence in 1951, and I give you data of 1971 also. Then we see another data of literacy. Another data of literacy. In terms of literacy, 1951 we were having total 16% of literacy, and in which, if we consider only female literacy, it was 7% only. So this was the status of literacy in our country, and life expectancy was also very low. Life expectancy was also very low, and it was 32 years. 32 years. And more than 80% of the population, mind you, more than 80% of the population
more than 80% of population were living in the poverty. So this was the social status they were having. Social indicators like infant mortality rate, literacy, life expectancy, and population in the poverty. 80% of, more than 80% of population were living in the poverty. So these were the social indicators. So to conclude this, Indian economy at the eve of independence, we were having underdeveloped economy. Why underdeveloped economy? Because of backward agriculture, poor industrial structure, and poor social indicators. Backward agriculture, मैंने आपको बताया more than half of GDP was coming from agriculture. 73% of workforce were involved in it. 80 to 85% population were dependent on agriculture. Then we were not food sufficient. So food sufficiency नहीं थी हमारे. We had to import food grains. Second हमने देखा इसमें कि mechanization नहीं था. Mechanization was missing. And chemical pesticides, modern inputs, chemical pesticides, fertilizers, they were missing. A short irrigation was not available, right? So this was the status of agriculture. Poor industrial structure, we saw absence of basic, key as well as heavy industries. So these were not there. There was dominance of cotton textile, jute industry, and jute and sugar industries. That's it. And if you talk about industries, see, if you talk about industries, 17% of GDP was coming from industries. 17% of GDP and 10% of workforce. So 10% of workforce were involved in industries. What do you mean by industries? See, if we want to know what constitutes, which sectors constitute industries, which sector constitutes industrial sector of economy, industry? Number one, mining. Number two, manufacturing. Number three, electricity, gas, and water supply. Electricity, gas, and water supply. And number four, construction. Construction is different from real estate. Construction is just building a house, and real estate is when brokerage is involved in it, right? So construction is a part of industry, and real estate is a part of service sector. So industry constitutes these four things: mining, manufacturing, electricity, gas and water supply, and construction. To give just an understanding about electrification, in 1951, India's total capacity of electricity generation was 2300 megawatt. So 1951 में हमारी पूरे इंडिया की जनरेशन कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी was 2300 megawatt. Today, only Delhi, forget about India, only Delhi, capital city, uses 7 to 8,000 megawatt of electricity per day. This is the per day consumption of electricity in Delhi. So this is evident that in terms of electrification, we were doing very limited, very limited capacity, and electricity is the engine of growth. Electricity is required if you want to grow more, if you want to produce more, increasing your production capacity, then electricity is needed, right? A very important input. So here we देखिए poor industrial structure की industries, basic industries were missing. Missing means then you have to import raw materials. If you want to go for manufacturing something, then you have to import raw materials because of the absence of basic industries. Key industries means infrastructure mainly. Why infrastructure? Because infrastructure helps a lot in bringing down the cost of production. Cost of production जो किसी चीज को produce करने में जो भी लागत आती है वो cost of production है. तो अगर
आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश ने डेवलप किया था वो एक हिसाब से जो उनको सूट करता था, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूसेज के उनको यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाना है, तो जहाँ जहाँ से लेकर जाना था वहाँ से। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसमें आप देख सकते हैं पुअर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ नहीं था, देयर वाज नॉट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का ये मतलब है कि एरियाज लाइक कोची, ट्रावनकोर, तमिलनाडु, they were bit more developed because of the investment by Britishers, but the large part of UP, Bihar, etc. was not at all developed because the kind of stretch they were having large states and princely states. Many princely states were also there in these these regions. So unbalanced regional growth. And social indicators, we saw infant mortality rate, and literacy and life expectancy. We have some data to show that the social indicators were very poor, right? Now, now we see the choices India was having after getting independent. Okay? So after getting independence, India was having choice of becoming a capitalist country or a socialist country. Capitalist economy or socialist economy. I told you capitalist means completely on the basis of market determination. Market determination means the forces of demand and supply will drive the allocation of resources. And socialist economy means all allocations will be done by government only. So all allocations will be done by government only. Now, if we could choose market economy or capitalist economy, there were several issues with that. Number one, देखो ऐसा था, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया, इसी में समझ लेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं चूज की और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं चूज की, ठीक है? So we went for mixed economy, and slightly tilt towards socialist economy, So this was the selection or choice of India after getting independence, that mixed economy. Mixed economy is the features of both capitalist as well as socialist. तो दोनों के कुछ फीचर्स कॉमन और slightly tilt towards socialist approach. वेलफेयर एक्सेट्रा, ठीक है? अभी इसको डिस्कस करते हैं कैसे। पहली बात फर्स्ट कि हम ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चूज किया। फर्स्ट पॉइंट इज lack of market training. People were not having bargaining skills. क्योंकि क्या था कि we were producing for ourselves only. जो भी हम प्रोड्यूस करते थे वो सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है। इसमें क्या है, वो हार्ट लगते थे, जैसे आपने अगर थोड़ा सा देखा हिस्ट्री वगैरह में, हार्ट लगते थे और वो हार्ट में क्या होता था कि सब अपने अपने प्रोड्यूस लेकर आते थे, जिसके पास जो है वो लेकर आता था और वहाँ पे बार्टर सिस्टम के बेसिस पे एक्सचेंज कर लेते थे लोग, ठीक है? उतना डोमिनेंस नहीं था रुपए का, तो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। किसी ने गेहूँ को वेजिटेबल के साथ एक्सचेंज कर लिया, चावल को फ्रूट्स के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो जिसके पास जो है वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो बार्गेनिंग स्किल्स
मार्केटिंग स्किल्स लाइक MRP क्या है, टैक्सेस को कैसे उसमें से रिकवर करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाते भी तो हमारे पास क्या है, मार्केट ट्रेनिंग नहीं थी लोगों के पास, ठीक है। नंबर 1 जो थी बहुत कम थी, क्योंकि लिटरेसी रेट ही आपने देख लिया, टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट ही 16% था, अराउंड 16%। तो उसमें 16% लिटरेसी रेट में आप कैसे इतनी जल्दी सारी ट्रेनिंग दे दोगे, ठीक है। तो एक तो मार्केटिंग ट्रेनिंग नहीं थी, लोगों के पास बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, तो वी वर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स ओनली, सो व्हाटएवर वी वर प्रोड्यूसिंग द गोल वाज नॉट टू सेल इन द मार्केट मोस्टली, क्योंकि फिर वो अलग है कि इंडिगो कल्टीवेशन भी हो रहा था, कहीं ओपियम कल्टीवेशन भी हो रहा था, वो एक अलग है। लेकिन डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी वाज डोमिनेटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो लोग खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो पहला ये पॉइंट है कि मार्केट ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं किया। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अभी मैंने आपको बताया प्लेसेस लाइक कोची, ट्रावनकोर, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को अभी कैसे एड्रेस करेंगे, अभी वो हम 5 ईयर प्लान में देखेंगे कि कैसे इसको एड्रेस किया। लेकिन उस समय वी वर हैवीली the growth was the regional growth was very skewed, ठीक है। कुछ एरियाज थे वो डेवलप थे, जो जिसमें ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और कुछ एरियाज जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुए थे, तो वो काफ़ी बैकवर्ड रहे थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स मोस्टली, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि हम जो है बेसिक इंडस्ट्रीज भी लगाएं, जिसमें मेटल्स मिनरल्स प्रोड्यूस करें, हम की इंडस्ट्रीज भी लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रोड डेवलपमेंट, रेलवेज डेवलपमेंट, और रोड डेवलपमेंट, रेलवेज, टेलीकॉम डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की भी नीड थी हमें, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन मेनली गवर्नमेंट को ही करना था, क्योंकि अगर आप प्राइवेट, इफ यू विल लीव दिस टू प्राइवेट प्लेयर्स, तो प्राइवेट प्लेयर्स में क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स फिर वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले, इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहाँ से फिर वापस अच्छा मिले रिटर्न, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको वेलफेयर नहीं करना है। प्राइवेट प्लेयर आर लेस इंटरेस्टेड इन वेलफेयर, मोर इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉफिट। तो वहाँ पर फिर ये जो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, या होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो प्राइवेट प्लेयर वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लाइक मेट्रो सिटीज़, अभी की जो मेट्रो सिटीज़ बन गई है, उस समय सिटीज़ बोल सकते हैं आप। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, तो ये भी एक कारण था कि हमने मिक्स्ड अप्रोच लिया, ठीक है। थोड़ा सा गवर्नमेंट पुश करेगी, और गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन द प्लेसेस वेयर ग्रोथ इज एट लोअर साइड। तो जहाँ पर जैसे रूरल एरियाज है, तो सरकार इन्वेस्ट करेगी, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। और दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये DPSPs में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि बहुत कम लोग थे जिनके जो वेल्दी थे, ठीक है। अभी हमने देखा कि मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन वर लिविंग बिलो पॉवर्टी। तो फिर बहुत कुछ लोग ही हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप इसको मार्केट इकोनॉमी पे ले जाओगे, ठीक है, तो होगा क्या मार्केट इकोनॉमी पे ले जाने से, कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वही ग्रो करेंगे, और फिर कुछ ही लोगों के हाथों में। आज भी आप देखोगे तो इनइक्वालिटी ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन पहले से हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है, ठीक है। पहले से काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है, वो अभी हम फिर डेटा देखेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगा। पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। उस समय की इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो देखिए आप, इतना डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, इतना इन्वेस्ट करती है पब्लिक प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद भी इतना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। तो उस समय कितना ज़्यादा रहा होगा। तो उस समय अगर गवर्नमेंट इंडिया अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट कर ले, तो उस समय फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, और जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में ही क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट होकर रह जाएगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, फिर बहुत सारे लोग डिप्राइव रह जाएंगे, और जो इंटरजनरेशनल इक्विटी है, इंटरजनरेशनल इक्विटी वो नहीं हो पाएगी अच्छी, ठीक है। और दूसरा, सक्सेस अचीव बाय सोवियत यूनियन। मैंने अभी आपको बताया 1919 में रिवॉल्यूशन
बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया सोवियत यूनियन का 1923 टू 28। और आप देखोगे आफ्टर 35 इयर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, ये वही पावर बच गए थे ना, सो उसमें एक यूएसएसआर था, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर और सुपर पावर भी बोल सकते हैं उस समय का। तो ये सोवियत यूनियन ने अचीव किया था। अच्छा, एक और बात है, इंडिया में इस तरह का कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ कि रिवोल्यूशन हुआ और पावर जो है वो शिफ्ट हो गया, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, इस तरह नहीं हुआ। रेदर हमारे यहाँ जो हुआ वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन पीपल। तो हमें हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर हो। ट्रांसफर ऑफ पावर होने का ये मतलब है कि जो सोवियत यूनियन था, ये यूएसएसआर में जो हुआ, अचानक रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें बदल के न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कम्युनिस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इंडिया में ये हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स वर फाइटिंग फॉर इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे थे, वो फाइट कर रहे थे सेल्फ रूल के लिए, ठीक है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय इंडिया में ऐसा कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, लोग फाइट कर रहे थे इक्वालिटी के लिए, ठीक है, इक्वल राइट्स वगैरह के लिए। तो इक्वल राइट्स वगैरह जो फ्रीडम फाइटर्स को सोवियत यूनियन का जो सोशलिस्ट मॉडल है वो ज़्यादा अपील कर रहा था, ठीक है। और फिर ये से ग्रो करके भी दिखाया, सुपर पावर बना, है ना। तो इसकी एग्जाम्पल भी थी हमारे पास सोवियत यूनियन की। इस वजह से वी अडॉप्टेड दिस मॉडल, वी अडॉप्टेड मिक्स्ड मॉडल। और फिर कांग्रेस में कितना भी अगर इसको प्रमोट कर देते कि हमें सोशलिस्ट मॉडल ही अडॉप्ट करना है, तो भी बहुत सारा क्या था कि कंसेंसस नहीं डेवलप हो रहा था इस पर, है ना। बहुत सारे लोग थे जो चाह रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, तो एक बैलेंस अप्रोच लिया गया। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ चूजिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। तो अभी तक एक बार जो आपने देखा है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लान इकोनॉमी क्या है, ठीक है। प्लान इकोनॉमी ये है कि एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्लान की जरूरत ही नहीं, वो मार्केट फोर्सेस तय करेंगे। तो प्लान इकोनॉमी एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ है। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ में क्या होगा, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी और वो सॉल्व करेगी इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये 3 चीजें। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग देखी हमने, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एक इंडिकेटिव प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी और वो सारे प्रोविंसेस के सारे प्रोड्यूसर्स के लिए एलोकेट करेगी रिसोर्सेज। दूसरा हमने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग देखा। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। प्रोविंसेस जो होंगे, स्टेट्स जो होंगे, वो अपना एक प्लान बनाएंगे, ठीक है, फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम सेंटर, एंड देन दे विल सबमिट देयर प्लान टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल take a call on it and it will go for allocation, ठीक है। तो दूसरा हमने देखा इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होगा कि गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज कंट्रोल नहीं करेंगे, पब्लिक सेक्टर्स जो सरकार की कंपनियां होती हैं, ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होगा, ये इंडस्ट्रीज को कंट्रोल नहीं करेंगे। लेदर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लान डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मार्केट में इंडिकेट कर देगी बस, फिर उसके हिसाब से मार्केट विल टेक इट्स कोर्स। ये हमने देखा इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी क्या है इसके बारे में। फिर हमने देखा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें मैंने आपको बताया कि हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थे और इसके मैंने आपको कुछ एविडेंसेस दी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हम क्यों थे, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर। व्हाई बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बिकॉज वी वर नॉट फूड सफिशिएंट, we were not food sufficient, we had to import food grains from outside, ठीक है। एंड दूसरा हमने देखा मॉडर्नाइजेशन नहीं था एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन नहीं था, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका यूज नहीं था, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलर्स, हार्वेस्टर्स ये सब यूज नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने और देखा कि अशोर्ड इरिगेशन वाज मिसिंग, अशोर्ड इरिगेशन वाज मिसिंग, इवन देयर वर केसेस ऑफ यूजिंग वुडन प्लाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लकड़ी के हल यूज हो रहे थे। दूसरा हमने देखा पुअर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज वर कंट्रीब्यूटिंग 17% ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉइंग 10% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। और कुछ सर्विसेज थी हमारे यहाँ, लेकिन वो सर्विसेज लोअर साइड सर्विसेज थी, शॉपकीपिंग, होटल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज का डोमिनेंस भी नहीं था,
और 30% ऑफ GDP अप्रॉक्सीमेटली, और कुरियर सर्विसेज, तो ये सब बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के पुअर होने के क्या रीजंस थे कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं थी और हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज में जनरली क्या प्रोड्यूस होता है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है, कैपिटल गुड्स का ये मतलब है कि वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज होंगे, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बात बता रहा हूँ। अगर आपने कार एक खरीदी है, यू हैव परचेज्ड अ कार एंड यू आर यूजिंग इट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप उसको ऑफिस जाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्लास जाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई कंज्यूमर गुड। अगर आपने कार खरीदी और वो कार को आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, ठीक है, अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर गुड। ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड। और दूसरा है, आपने कार परचेज की एंड यू आर यूजिंग इट फॉर पुलिंग, फॉर एग्जांपल ओला, उबर, ठीक है, आप अगर इसके लिए यूज कर रहे हैं इसको, तो ये कार से आप फर्दर सर्विसेज दे रहे हैं, फर्दर सर्विसेज, यू आर यूजिंग दिस कार टू गिव फर्दर सर्विसेज एंड दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है, तो कुछ समय मतलब एक ही गुड इस समय कंज्यूमर गुड और इस समय अगर आप इसको यूज कर रहे हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर कैपिटल गुड हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स की भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स की नहीं है, इसका ये मतलब है कि फिर मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ट्रक्स नहीं है, सीमेंट की इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स जो यूज होंगे इंडस्ट्रीज में फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस कैपिटल गुड्स, ये हमारे यहाँ नहीं है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं थी, जैसे ट्रांसफार्मर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी हमारे यहाँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। इसका ये मतलब है कि वी वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड, तो जो भी होगा वो हम फॉरेन से मंगाएंगे। ठीक है, फॉरेन एड पे हैवीली डिपेंडेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा पूरा सोशल इंडिकेटर्स in terms of infant mortality rate, in terms of literacy rate and life expectancy। फिर हमने देखा कि पॉवर्टी में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ गुजारते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आया ऑप्शन कि हम या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन सकते थे कॉपीइंग यूएस, या फिर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बन सकते थे कॉपीइंग यूएसएसआर, बट हमने एक मिक्स्ड अप्रोच लिया विथ स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट अप्रोच। ठीक है, वेलफेयर वगैरह के लिए। और फिर इसमें हमने देखा कि क्यों लिया हमने, क्या रीजंस थे इसके, मार्केट ट्रेनिंग की कमी थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस रीजनल ग्रोथ, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, ये अभी हमने सारा समझ लिया। ठीक है, मोस्टली जो है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, तो वी वर प्रोड्यूसिंग फॉर आवरसेल्व्स ओनली, तो मार्केट ट्रेनिंग नहीं थी हमारे पास। रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कुछ रीजन जिसमें ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट किया था तो वो रीजन काफ़ी ग्रो कर रहे थे, अदरवाइज रूरल एरियाज और जो नदर्न इंडिया का पार्ट है यूपी, बिहार एक्सेट्रा, तो यहाँ का लार्ज पार्ट जो है वो अंडर डेवलप था बहुत ज़्यादा। फिर हमने इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन देखा, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, और टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, दिस वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। ये यूज भी हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSBs के लिए। ठीक है, फिर सक्सेस अचीव बाय सोवियत यूनियन, मैंने आपको बताया फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1923 टू 1928। अब आ जाते हैं प्लानिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये अप्रोच हमने लिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950, तो 1950 में 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। अब ये समझना है कि प्लानिंग कमीशन किस टाइप की बॉडी थी। जैसे अगर आप अपने पॉलिटी के हिसाब से देखें, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, तो किसी भी बॉडी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये मतलब होता है विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जांपल अगर आप देखें आर्टिकल 280, तो ये फाइनेंस कमीशन बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 315 फॉर यूपीएससी, सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 324 दिस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, द प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और जिसको स्क्रैप कर दिया गया वो नहीं काम कर सकती है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे एक बॉडी बनी थी है ना, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसको स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बॉडी जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होगा, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ। लॉ का ये मतलब है जैसे आप एक बॉडी देख सकते हैं इंडिया में एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एनजीटी एक्ट 2010। एक एनजीटी एक्ट बना है 2010 में, उसके थ्रू ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ है। इसी तरह सेबी है, इसी तरह आरबीआई है, आरबीआई एक्ट 1934। तो ऐसे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दीज आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू प्रोविजन ऑफ अ लॉ। तो लॉ के अंडर में बना तो ये क्या हो जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब जो लॉ के बाहर है ये क्या हो जाएगी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी में भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट और अदर्स। गवर्नमेंट और अदर्स। अब गवर्नमेंट का ये मतलब है कि या तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, या तो फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आए हैं, आपके म्यूनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, उनकी बात करें। अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं और पंचायत की बात कर रहे हैं। तो या तो गवर्नमेंट ने इन तीनों में से किसी एक ने बनाया है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये किसने बनाया था, यूनियन गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन यहाँ पर आता है इस स्ट्रक्चर में, दिस इज द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और अदर्स जैसे अभी अमित आईएएस है, ये क्या अमित आईएएस को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया नहीं, क्या अमित आईएएस को किसी लॉ के थ्रू बनाया गया नहीं, तो फिर नॉन स्टैट्यूटरी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर लॉ के थ्रू नहीं है तो नॉन स्टैट्यूटरी हो गया। नॉन स्टैट्यूटरी में देखेंगे क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू बना है, वो भी नहीं है तो फिर यहाँ पर आगे तो मोस्टली यहाँ पर क्या रहेगी, प्राइवेट बॉडीज रहेगी, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती हैं जैसे अमित आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये क्या हो गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो प्लानिंग कमीशन की आप बात कर रहे हैं, अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग में है। तो अभी जो नीति आयोग है वो भी यहीं पर लाइक करता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है ना, और गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू बना है, किसी लॉ के थ्रू नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के थ्रू नहीं बना है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। जैसे अभी आपका जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी काउंसिल तो ये पहले नहीं था, जीएसटी एक्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इसको बनाया गया। तो इसी तरह ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर है कि किसी भी बॉडी को आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि वो बॉडी कैसे बनी है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको इसमें बता दिए। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट बनाती है इसको, नीति आयोग को बनाया। तो प्लानिंग कमीशन उनको लगा प्लानिंग कमीशन की अब जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू गो फॉर प्लान्ड इकोनॉमी, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग को ले आए, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हो गया जनवरी 1950 में। प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950s। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया वो 1951 से 56। तो अब हम समझने जा रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है और अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें क्या समझना है कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हमने, क्या फीचर्स थे प्लानिंग के, और उसके बाद क्या प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी और क्या एक्चुअल ग्रोथ हुई हमारी, ठीक है। 5 साल के बाद जब हमने देखा कि एक्चुअल ग्रोथ क्या हुई है, वो कितनी थी और हमने टारगेट कितनी ग्रोथ की थी, ये समझना है, ठीक है। So we take some characteristics of it. Number 1, it was based on
हैबिट-डोमर मॉडल। हैबिट-डोमर मॉडल का ये मतलब है, देखिए आपको इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी, हैबिट-डोमर मॉडल क्या होता है, हैबिट-डोमर मॉडल के क्या फीचर्स हैं, ये नहीं समझना है। हमने हैबिट-डोमर मॉडल अडॉप्ट किया, तो वो मॉडल क्या कहता है, बस आपको इतना समझना है कि वो मॉडल हमारे लिए क्या कहता है। हमारे लिए ये कहता है इट वाज सेविंग फोकस्ड मॉडल, इट वाज सेविंग फोकस्ड मॉडल। सेविंग फोकस्ड मॉडल का क्या मतलब है, देखिए अगर आप सेविंग इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीज सेविंग इन द इकोनॉमी, तो सेविंग अगर हम मान के चलते हैं, देयर आर फ्यू असम्पशंस कि बैंकिंग पेनिट्रेशन वगैरह है, लोग अपनी सेविंग जो है वो बैंक में जाकर जमा कराते हैं। अगर सेविंग हमारी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने लोन दे दिया मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लोगों ने पैसा दिया, उसको अपने इंडस्ट्री में लगा दिया, ठीक है, अपने प्रोडक्शन यूनिट में लगा दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स, जो भी आप अपना है वो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप कहाँ लगा रहे हैं, अपने गुड्स को, अपने कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल गुड्स को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो सेविंग थी, वो पैसा कहाँ यूज हो गया, इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई और आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो इससे आपकी क्या बढ़ेगी, इससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी। आउटपुट मतलब क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ मतलब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ और आउटपुट बढ़ेगा मतलब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो अगेन सेविंग बढ़ेगी, अगेन सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज नोन एज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, दिस इज नोन एज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, दिस इज नोन एज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या होगा कि सेविंग इंक्रीज करना, तो फोकस किस पे होना चाहिए, सेविंग इंक्रीज करने पे होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज हैबिट-डोमर मॉडल, बस इतना ही समझना है आपको हैबिट-डोमर मॉडल के बारे में, और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेविंग फोकस्ड मॉडल। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, ठीक है। हाईएस्ट एलोकेशन वाज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड देन सेकंड हाईएस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो ट्रांसपोर्ट में हमने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट में मेन फोकस वाज रोड डेवलपमेंट, मेन फोकस वाज रोड डेवलपमेंट। This was highest allocation. Highest allocation was given to this sector. Highest allocation. ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। अगर इफ यू वांट टू गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स डेवलपमेंट नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी स्क्यूड रह जाता है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिसके लिए हाईएस्ट एलोकेशन किया गया इस रोड डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसके लिए यहाँ पर पहला एलोकेशन, हाईएस्ट एलोकेशन, रोड डेवलपमेंट, रेलवेज, ठीक है। मेन फोकस वाज रोड डेवलपमेंट बट रेलवेज टू, पोर्ट डेवलपमेंट, रेलवेज, पोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इसके लिए। दूसरा एग्रीकल्चर के लिए हमने फोकस किया इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज, क्योंकि अगर मॉडल इनपुट्स इरिगेशन नहीं है तो ड्रॉट्स वगैरह रहेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मॉडल इनपुट्स के लिए हमने फोकस किया, तो मॉडल इनपुट्स हमारे फार्मर्स यूज करें। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन ये जो है इसके लिए हमने क्या किया, बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज है ना, बेसिक की और हैवी इंडस्ट्रीज, इस पे हमने फोकस करना स्टार्ट किया। हालांकि ये सेकंड 5 ईयर प्लान में ज़्यादा फोकस होगा इस पर, लेकिन इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की हमने कोशिश की कि सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे ये फोकस था कि मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर पाए हम, जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी लो था, हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ा था।
ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा रोड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था, रेलवेज और पोर्ट डेवलपमेंट भी है उसका पार्ट। और इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने कोशिश की कि वी विल एस्टैब्लिश बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, टारगेटेड ग्रोथ वाज 2.1%, लेकिन हमने अचीव किया 4.6% पर एनम के रेट से। तो टारगेटेड ग्रोथ क्यों कम था 2.1% पर एनम, और हमने एक्चुअल ग्रोथ जो अचीव की वो उससे मोर देन डबल थी 4.6% पर एनम के रेट से। ऐसा क्यों था, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरिटेज मॉडल पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। तो there were plans to propose which propose basically an establishment of heavy industries। और दूसरा ट्रांसपोर्ट में हमने देखा रोड डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर में हमने देखा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनपुट्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, टारगेटेड ग्रोथ हमने देखा 2.1% पर एनम था, एक्चुअल ग्रोथ हमने देखा 4.6% पर एनम के हिसाब से। अब हमें ये समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड why actual growth was this much high and why targeted growth was less। तो इसमें ये समझना है टारगेटेड ग्रोथ जो है वो 2.1% क्यों रखी। देखिए एक पॉइंट है 1900 से लेकर from 1900 to 1947, first half of 20th century, we grew at the rate of 0.7% per annum। इतना कम हमारा ग्रोथ रेट रहा था। ठीक है, 0.7% पर annum। तो हमें लगा 2.1% भी अगर हम अचीव कर लेते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए टारगेटेड ग्रोथ को कम रखा गया था। ठीक है, अब हमने जो अचीव किया वो था 4.6% पर annum। उसके क्या रीजंस थे? तो फर्स्ट रीजन आप देख सकते हैं क्या था, हाई इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है। अब वी वर गेटिंग लोन्स फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, OPEC countries also, OECD also। So we were getting loan from these countries and government was investing much higher। तो अभी जो हम GDP कैलकुलेट करते हैं उसमें जो G टर्म होता है C+I+G+NX है ना, ये GDP कैलकुलेशन का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इसमें अगर G हाई रहेगा तो आपका GDP हाई रहेगा। ठीक, तो एक पॉइंट पर ध्यान रखें, हाई इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है इकोनॉमी में। ठीक है, इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू पेंट अप डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय पेंट अप डिमांड? अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पेंट अप डिमांड का, जैसे जो आपकी अभी स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपकी डिजायर होती है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, सेल आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, ये कपड़े खरीदने हैं, ये बुक खरीदना है, वो बैग खरीदना है। ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आपको पता है कि रिसोर्सेस अभी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, फिर जिस दिन आप वेल एस्टैब्लिश हो जाओगे तो आप अचानक सारी चीज़ें खरीद लो, शुरू के 2-3 साल तो सिर्फ शॉपिंग ही करोगे। तो ये हो गई आपकी रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड, रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। ठीक है, इसी को आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो, जो कोविड में हुआ। ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन था तो लोग चीज़ें खरीदना भी चाह रहे थे, अगर उनके पास रिसोर्सेज थे भी तो भी नहीं खरीद रहे थे कि पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है। फिर एक बार चीज़ें कंट्रोल में आ गई तो फिर जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ये भी हम बोल सकते हैं रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड की ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। ठीक है, और दूसरा लो बेस इफेक्ट ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, 0.7% से ग्रो कर रहे थे। अच्छा, अभी यहाँ आप इसके कंटेक्स्ट में कैसे समझ सकते हैं? फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान के कंटेक्स्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम पर रूल हो रहा था। ठीक है, तो रूल हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश ने हमें रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जैसे ऑटोमोबाइल को परचेज करने के लिए और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पर लिमिटेशंस थी कि इंडियंस कैन नॉट बाय दिस, कैन नॉट गो फॉर दिस। तो ये जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारा पेंट अप डिमांड बढ़ गया। ठीक है, ऐसे फिर जो हमारी गवर्नमेंट आई, जब फिर इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई तो फिर दे वर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। तो फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें सब्सिडाइज कर दी गई और फिर लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो उसी वजह से कंजम्पशन बढ़ गया इकोनॉमी में। ठीक है, और लोगों का इफेक्ट आपको पता है, हम काफ़ी कम रेट से ग्रो कर रहे थे तो फिर वो कोई इशू नहीं। अचानक क्या हो गया कि जब हमारी गवर्नमेंट आ गई और फिर हमारे वेलफेयर के लिए काम होने लगा तो फिर हमारा ग्रोथ अपने आप बढ़ गया। ठीक है,
तो ये हेरोइक था हमारे लिए काफी 4.6% का ग्रोथ अचीव करना, ठीक है। दिस वाज 5 ईयर प्लान, डिसेंट इन ग्रोथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफी अच्छी ग्रोथ रही हमारी इसमें। अब हम आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को लेकर, ठीक है। जस्ट फॉर 5 मिनट्स स्टॉप कर दीजिए। अच्छा अच्छा वॉइस जी Okay, so welcome back. We were discussing 5-year plan, and we need to discuss second 5-year plan because we are done with this first one, right? So just a second.
So we will discuss second 5-year plan. See, second 5-year plan is the most important plan. Second 5-year plan is the most important plan because all coming 5-year plans till 1991 were heavily based on second 5-year plan. They were drawing heavily from second 5-year plan, so that makes second 5-year plan little important, more important. So focus on capital intensive technology. Focus on capital intensive technology means production of capital goods. Production of capital goods. Basically, ये जो second 5-year plan है, production of capital goods. This second 5-year plan was based on Mahalanobis model. PC Mahalanobis was deputy chairperson of planning commission. क्योंकि जो chairman होते हैं, chairman of planning commission, chairman of planning commission. ये ex officio सीट होती है, ex officio. जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन होंगे, ठीक है। ये सेटअप था। और ये डिप्टी चेयरपर्सन जो थे हमारे यहाँ, डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे? पीसी महालनोबिस। और बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये जो मॉडल था ये एक रशियन मॉडल के बेस पर था। ये जो फाइनल प्लान था हमारा, ये पीसी महालनोबिस मॉडल भी जो था हमारा, ये पीसी महालनोबिस मॉडल किसके बेस पर था? एक रशियन मॉडल है, फेल्डमैन मॉडल, ठीक है, फेल्डमैन मॉडल। इसके बेस पर ये हमारा सेकंड 5-year प्लान और महालनोबिस प्लान बना था। इसको नेहरू महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट नाम इसको लिख सकते हैं आप इसके। तो ये पहला इसमें जो फीचर आप देख रहे हैं ये क्या है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन। और इसमें ये सोचा गया कि कंज्यूमर गुड्स को जाने देते हैं अभी फिलहाल। और एक रीज़न भी दिया गया, जब इस पर क्वेश्चन हुआ, एक रीज़न भी दिया गया कि लोगों ने इतने साल वेट किया है क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स के लिए। कंज्यूमर गुड्स जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, उसमें ये रीज़न दिया गया कि लोगों ने अब तक वेट किया ही है इतना, थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं 5 साल 10 साल, और तब तक हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं, कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। अब जब हमारी कैपिटल इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, देन ये जो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है ये ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में आप क्या बना रहे हैं? मशीन्स बना रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होगी, बॉयलर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स बना रहे हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल्स बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स एक्सेट्रा, लेथ मशीन, ये सब का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद कंज्यूमर गुड्स बनने लगेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आगे चल के ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिस वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस मॉडल। तो पहला फोकस जो था वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर था। दूसरा था PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो सरकार की कंपनीज हैं। दे वर गिवन द पोजीशन ऑफ कमांडिंग हाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कमांडिंग हाइट्स? कमांडिंग हाइट्स मींस they will control resources. They will control all resources. That is public sector enterprises. Means the companies which were established by the government, they will control all the resources, and they will go for controlling the production by private sectors also. So they will go for controlling the production by private sector. ये सारे resources पर इनका कंट्रोल होगा, और उसके बाद ये जो है प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोडक्शन और आउटपुट को कंट्रोल कर सकेंगे। ये पोजीशन दी गई किसको? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की जो है विलिंगनेस नहीं थी। अभी आप इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। प्राइवेट सेक्टर की इतनी विलिंगनेस भी नहीं थी। विलिंगनेस क्यों नहीं थी प्राइवेट सेक्टर की?
क्योंकि ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो रेट ऑफ रिटर्न आपको आने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो जो आपका रिटर्न है वो काफ़ी समय बाद आता है, तो इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि वो गैप, जो पीरियड का गैप है, एक तो आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पर आपने अर्निंग की, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो होती है इसमें ये जेस्टेशन पीरियड इज 10, 15, 20 इयर्स, समटाइम 25 इयर्स। तो इतना प्राइवेट जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये इतना वेट नहीं कर सकते, ठीक है। उस समय की कंडीशंस भी इतनी नहीं थी, और गवर्नमेंट वेट कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट विल गेटिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बनाई गई वर्ल्ड वाइड बनाए इसलिए गए कि लोन दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सॉफ्ट लोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं उसको, तो वो बनाया ही इसलिए गया है कि लोन दिया जाए, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स को काम क्या दिया गया कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री के लिए। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री क्या है कि आप फुटवेयर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री फुटवेयर, टॉयज, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये लेबर इंटेंसिव भी होती है। कैपिटल गुड का प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अभी हमने देखा था मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मोस्टली क्या है कि इसमें आप यूज करोगे मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, ये आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। तो ये इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री दी गई डेवलप करने के लिए, और कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया गया। सम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व, approximately 17 industries were reserved. 17 industries were reserved exclusively for public sector. Exclusively for public sector. ये 17 इंडस्ट्रीज, इसमें ये था कि अगर कोई पहले से प्राइवेट प्लेयर है भी तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, नेशनलाइज कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसमें आप टाटा एयरलाइंस की एग्जाम्पल ले सकते हैं। टाटा एयरलाइंस ये प्राइवेट प्लेयर थे एविएशन इंडस्ट्री में, और एविएशन सेक्टर को ही क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया इसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। तो टाटा एयरलाइन क्या बन गया, एयर इंडिया, और पूरी ओनरशिप किसके पास आ गई, गवर्नमेंट के पास आ गई, ठीक है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, देखो इंडस्ट्रीज और कंपनीज दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे, तो मेक दैट डिफरेंस वेरी क्लियर। जैसे ऑटोमोबाइल इज एन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल क्या है, एक इंडस्ट्री है, और उसमें मारुति सुजुकी है या हिंडाई है, ये क्या है, ये फर्म्स है सिर्फ, ये कंपनीज हैं, ठीक है। लेकिन महिंद्रा है, ये कंपनीज हैं, और बाकी ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को रिजर्व किया गया है, समझ सकते हो आप, है ना, काफ़ी डाइवर्स पैरामीटर है ये। इसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट इज़ एन इंडस्ट्री, ठीक है। और इसमें अमित IAS है, तो अमित IAS क्या हो गया, इसमें फॉर्म हो गई एक कंपनी हो गई। सो दिस विल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, 17 इंडस्ट्रीज विल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। और क्यों रिजर्व किया जा रहा है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट करना है वो गवर्नमेंट करेगी, और दूसरा बैलेंस रीजनल ग्रोथ भी करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस रीजनल ग्रोथ करने के लिए सरकार ने जब इंडस्ट्रीज सेट करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट सेट कर रहे हैं कहाँ पर, राउरकेला है, भिलाई है, ये जो सिटीज़ हैं ये डेवलप नहीं थी, राउरकेला, भिलाई एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ सिटीज विल नॉट डेवलप। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ जहाँ जगह प्लांट लगाए, और फिर इसके बाद आज आप देख सकते हैं इंडिया इंडस्ट्रियल हब। तो ये कैसे डेवलप होगा, ये अगर गवर्नमेंट कर रही है तो डेवलप होगा, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं जाएंगे, राउरकेला नहीं जाएंगे, वो भिलाई नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई जितनी फैसिलिटीज़ देनी है किसी इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए,
अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर न करके सिर्फ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स का आना मुश्किल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फैक्ट्री सेटअप की, वहाँ जाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कंपनी बनाना और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और जहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है वहाँ जाकर इंडस्ट्रीज लगाना, सेटअप लगाना, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उससे बहुत। तो फिर ये जो है गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व किया। फिर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, हम इसको आप समझेंगे कि प्रोटेक्शन भी देगा, सरकार की कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनीज हैं तो उससे आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिल रहा है कंपटीशन से, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग क्या है कि एंट्री बैरियर है। लाइसेंसिंग क्या है? एंट्री बैरियर है, इट इज एन एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर का ये मतलब होता है कि आपने क्या किया यहाँ पर कि अगर किसी को इंडस्ट्री में आना है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लाइसेंसिंग जो है 3 चीज़ों के लिए था। लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर 3 थिंग्स: एंट्री, एक्सपांशन एंड एग्जिट। ये 3 चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग की नीड थी। लाइसेंसिंग एक बैरियर है। अब इसको 2 एम था गवर्नमेंट का जिसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया लाइसेंसिंग को। एक तो अभी क्या है, अगर आप लाइसेंसिंग नहीं लगाओगे, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एनीबडी कैन कम इनटू द मार्केट और स्टार्ट द बिजनेस। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर जो नीड है इकोनॉमी की उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होगा, रेदर द प्रोडक्शन विल बी फॉर कैप्चरिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके अपने प्रोडक्ट को। अब लाइसेंसिंग में क्या होता था कि आप कितना प्रोडक्शन करेंगे इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। एक्सपांशन के लिए लाइसेंस है, तो फिर ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, सॉरी इसका फीचर क्या है जिसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? फीचर ये था कि अगर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। तो इसका एम ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा ये था प्रिवेंट production of commodities which are not needed। ये पूरे 5-year प्लान का जो बेस था, मूलभूत आधार था, वो ये था कि गवर्नमेंट विल प्रिडिक्ट द डिमांड इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट प्रिडिक्ट करेगी विद इट्स रिसोर्सेज, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या नीड है इकोनॉमी में, और फिर उसके आधार पर ये 5-year प्लान्स बनेंगे, ठीक है, इस तरह का। तो गवर्नमेंट विल असेस, तो गवर्नमेंट ये इससे क्या इंट्रोड्यूस by introducing license, government was trying to prevent wastage and to prevent the production of commodities which are not needed in the economy at that particular point of time, ठीक है। दूसरा है import substituting industrialization। import substituting industrialization का ये मीनिंग है कि वो कम्युनिटीज जो एनी हाउ हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हम उसका क्या करें, सब्स्टिट्यूट बनाना शुरू करें, ठीक है। तो ये सेकेंड 5-year प्लान में हमने स्टार्ट किया, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान का फोकस ये था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन producing those communities which will anyhow we will be importing from some another country, foreign country, ठीक है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हो गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम फिर वो चीज़ें भी प्रोड्यूस करने लगे जिसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, तो वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉपर वायर, कॉपर यूटेंसिल्स ऑल्सो, बट हमारे पास कॉपर ओर नहीं था उतना, ठीक है। तो फिर उसमें उस चक्कर में क्या हो गया, कॉपर ओर इम्पोर्ट करना पड़ गया हमें, ठीक है, रॉ कॉपर इम्पोर्ट करना पड़ गया। तो इसकी ये ऐसी कुछ चीज़ें हुई हमारे साथ। जब ये चीज़ें हुई तो हमारा इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ था, तो फूड ग्रेन्स तो हम इम्पोर्ट कर ही रहे थे, और फिर इसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा रॉ मटेरियल्स भी इम्पोर्ट करने लगे, रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स, ये दोनों इम्पोर्ट करने की वजह से हमारे इम्पोर्ट भी हाई हो गए,
और इम्पोर्ट बिल वेंट अप और इम्पोर्ट बिल हाई होने की वजह से क्या होगा, वी फेस फर्स्ट बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फर्स्ट बीओपी क्राइसिस इन 1957-58। जो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग का ड्यूरेशन है, इसी में हमें फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी देखने मिला। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है कि अभी आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट आप नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है हमारा, तो हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही है, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना है, फूड ग्रेन्स के साथ हमें ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, तो ये इनके इंपोर्ट करने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया और हमारा एक्सपोर्ट नहीं था। तो फिर जो भी हमें पेमेंट करनी थी हमारे इंपोर्ट्स के लिए, वो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से करनी थी, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था उससे हमें पेमेंट करनी थी, है ना। क्योंकि आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन करेंसी मेन डॉलर में आपको पेमेंट करनी है, तो इस वजह से हमारा फॉरेक्स काफ़ी लो था और ये फर्स्ट बीओपी क्राइसिस हुआ। बीओपी क्राइसिस का मतलब ही यही है कि आपके बीओपी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया और अब आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, फिर आप क्या करोगे, फिर आप लोन लोगे, अब इसमें ये समझिए आप कि जो अभी कंडीशन हम पाकिस्तान के देखते हैं कि क्या है कि एवरी नाउ एंड देन दे आर आस्किंग फॉर लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर बायलैटरल, हम भी इंडिया की भी उसी तरह की कंडीशन थी। आप देखोगे ये जो पीरियड है 1951 से लेकर 91 का पीरियड, इस पीरियड में ये जो पीरियड था हमारा 1951 से लेकर 1951 to 1991, इस पीरियड में हम 14 to 15 टाइम्स भी वेंट टू IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, ये कंट्रीज, और फिर बायलैटरल लोन भी थे हम, ठीक है, बायलैटरल लोन्स भी लेते थे हम, जैसे जापान से ले लिया, न्यूजीलैंड से ले लिया, इनसे हमने लोन ले रखा था। तो हमारी कंडीशन इस समय बहुत वल्नरेबल थी, जो कंडीशन आज हम पाकिस्तान की देखते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, वो ये है कि 1991 में हमने रिफॉर्म किए, 1991 में हमने रिफॉर्म किए और 91 के रिफॉर्म के बाद 1997 तक हमने OECD का लोन कंप्लीट कर दिया, पूरा रिटर्न कर दिया OECD का लोन। ईयर 2000 तक हमने IMF के सारे लोन दे दिए, ठीक है, और 2001 हमने वर्ल्ड बैंक के जितने भी नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे वो सारे लौटा दिए। इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2004 में वी वर बैडली हिट बाय सुनामी एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दे ऑफर्ड अस लोन, ठीक है, उन्होंने उनको लगा कि उनकी कंडीशन तो ये ऐसे ही वल्नरेबल है, फिर ये आ जाएंगे लोन लेने, तो चलो हम ऑफर कर देते हैं। इन्होंने लोन ऑफर किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप हमारे यहाँ के इन्वेस्ट कीजिए लेकिन हमें एड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक सिचुएशन है, इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करना भी चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं ना, ये सिचुएशन है, पाकिस्तान ने लोन लिया, लोन देंगे कब वो हमें नहीं पता, तो ये एक कंडीशन थी, ये कंडीशन है, इसको भी हमें आगे पढ़ रहे हैं, 91 इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ेंगे और फिर कैसे ये सारा ये पॉसिबल कैसे हो पाया वो देखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन चल रही थी हमारी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। कारण क्या बना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का? इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, ये दो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा इंपोर्ट बिल हाई था, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व उतने नहीं थे क्योंकि हमारा फॉरेक्स नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज, हमारे इंपोर्ट नहीं थे, हमारे एक्सपोर्ट नहीं थे, इंपोर्ट ज़्यादा थे, तो वो वहाँ पर फिर हमें लोन लेना पड़ रहा था, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम सोचते हैं क्या, एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ पर लार्ज डैम्स बनने लगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल
इंस्टीट्यूट्स हैं। Ford Foundation, this is Ford Foundation, Ford, F-O-R-D, Ford Foundation of USA, they were called in 1958 by the government of India, और इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 1959, how India can achieve food sufficiency, how India can achieve food sufficiency और how India can become food independent, ठीक है, food sufficiency कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की। सो फूड फाउंडेशन वाज कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1959 में इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की। एग्रीकल्चर में क्या होता था, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर रहे थे, मोस्टली लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन ये एलोकेट किया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का सेटअप ये प्रपोज किया। फोर्ड फाउंडेशन को बुलाया गया, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की हाउ इंडिया कैन अचीव फूड सफिशिएंसी, क्योंकि अभी भी हमारे फूड सफिशिएंसी फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बताया मैंने आपको रीजन। टारगेटेड ग्रोथ 4.5% पर एनम था और लगभग 4.2% हुआ भी, तो काफी सक्सेसफुल प्लान रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कि ये काफी हाई थी, मोर देन 8% पर एनम। और इसका दो रीजन मैंने आपको बताया। एक रीजन तो ये कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पर हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो ग्रोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काउंट होता है ग्रोथ में, ये मैंने आपको बताया। और दूसरा इसमें जो मेन फैक्टर चल रहा था अभी, ये एक तो मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट का फोकस था कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे, तो इसका एक तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई होने की वजह से हुआ, और दूसरा जो अभी हमने रीजन देखा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज है मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काउंट होता है ग्रोथ में, तो इसकी वजह से इसका ग्रोथ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, ये यहाँ सक्सेस हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने ग्रोथ टारगेट की 5%, टारगेटेड ग्रोथ वाज 5% पर एनम एंड वी अचीव 3.6% पर एनम। ठीक है, इसके ये देख सकते 3.6 भी नहीं, इसको सही कर लेना, 2.8% पर एनम के रेट से हमने ग्रोथ अचीव की। ठीक है, 2.8% पर एनम, तो काफ़ी कम हो गया यहाँ पर ग्रोथ। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई व्हाट वर द रीजंस फॉर अंडर अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ टारगेट। ठीक है, इसको 2.8 कर लेंगे, ये 2.8% पर एनम का रेट है एक्चुअल ग्रोथ। हम इसमें देखते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल वॉर, तो एक चाइनीज एग्रेशन है, चाइनीज एग्रेशन 1962, इंडो-पाक वॉर 1965। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो गए, एक ये इसकी वजह से ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ गया। ड्रॉट 1965 का 1965 का ड्रॉट, 1966 का ड्रॉट। ठीक है, अगेन फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होगा, और दूसरे इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1964 मई 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड। ठीक है, तो नेहरू जी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद 1966 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री डाइड। तो एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री, अब इसके इंस्टेबिलिटी है। और इसके बाद जब आप देखोगे, इसके बाद फिर वो लीडर्स आए जो लोगों में उतने अवेयर, लोगों में उतने पॉपुलर नहीं थे। ठीक है, जैसे फिर मिसेस इंदिरा गांधी आएंगे तो वो इतनी पॉपुलर नहीं होगी जितने पंडित नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ये लोगों का क्या था, ये प्रो पुअर है, पंडित नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री, ये प्रो पुअर जरूर है, लेकिन ये किसी भी चीज को पॉपुलिस्ट मेजर के लिए नहीं देना चाहते। पॉपुलिस्ट मेजर क्या होता है, आप फेमस बनने के लिए, लोगों के लोकप्रिय बनने के लिए। ये लोग तो पहले से लोकप्रिय थे, तो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो तब से ही लोकप्रिय थे, तो लोकप्रिय बनना नहीं था, बराबर। तो ये लोग जो डिसीजंस ले रहे थे वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस थे। ठीक है, स्टेट्समैन जो कहा जाता है। लेकिन अब जो लोग आएंगे फिर इसके बाद जो लोग आएंगे वो पॉपुलिस्ट मेजर भी लेंगे, है ना, गरीबी हटाओ, वो सारी चीजें। तो अभी हम देखना है क्या है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्रोथ हमारी कम हुई। एक तो ये सेकेंड वीओपी क्राइसिस, क्योंकि अगेन
फूड क्राइसिस था, अभी यहाँ पर हमने देखा 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉट्स हमने फेस किए थे। तो फूड क्राइसिस था, फूड क्राइसिस रहेगा तो फूड इंपोर्ट करना होगा, फूड इंपोर्ट करोगे तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट है नहीं तो आप एनी हाउ क्रूड ऑयल पे हमें इंपोर्ट करना ही है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है। और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज में हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स की हमें बहुत जरूरत पड़ रही थी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल था, फॉर एग्जांपल शुगर केन, जूट, कॉटन, ये इनकी भी कमी थी, तो हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ता था। जब ये भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फूड ग्रेन भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो अगेन फॉरेक्स हमारा कम हो गया, फॉरेक्स कम हो गया तो अगेन हमारे यहाँ सेकंड बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे फिर से दिमाग से हो गया और इसकी वजह से ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, पुअर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, पुअर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट आप इस तरह से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में पुअर रेगुलेशन की वजह से क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं ये इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही थी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, तो बैंकिंग सेक्टर रिमेन अंडर डेवलप्ड। तो पुअर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, बैंक के कमर्शियल बैंक्स को जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पुअर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की एक एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कुछ चीज़ें हो रही थी, ये 3rd 5 ईयर प्लान में कुछ चीज़ें ऐसी हुई एग्रीकल्चर के लिए जो आपको समझनी है। नंबर 1, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया 1961 में, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है, जैसे मॉडर्न इनपुट्स हैं, HYV सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, और वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को, इसमें क्या किया गया था IATP ने 7 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया। ठीक है, और इनका काम क्या था, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे कि यहाँ इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे इसमें ये देखा गया कि विलिंगनेस ऑफ फार्मर्स है, बड़े फार्मर्स हैं यहाँ पर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया और यहाँ पर यूज़ किया गया हाई वैरायटी सीड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों को यूज़ किया गया टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू सी वेदर this productivity is happening or not। तो ये इसको आप प्रीकर्सर बोल सकते हैं। ये जो 2 प्रोग्राम देख रहे हैं आप, ये IADP, ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये फिर इसके बाद ये दूसरा वाला जो है IAAP 1964 में इसको लॉन्च किया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। IAAP को कंट्री से 104 डिस्ट्रिक्ट्स सिलेक्ट किए गए थे इस प्रोग्राम के लिए, 114 डिस्ट्रिक्ट्स, बाद में इसको 150 भी कर दिया गया। ठीक है, बाद में ये 150 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 150। तो ये हम देख रहे थे, these 2 programs can be called as precursor to green revolution। बस ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हाई वैराइटीज, मॉडर्न इनपुट्स, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन और ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी करवा देना। ठीक है, लार्ज फार्मर्स हैं तो ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी कराने में इशू नहीं आएगा उतना, और विलिंगनेस, फार्मर की जो विलिंगनेस वो भी यहाँ, इसको हम ये सब सिलेक्ट करके कुछ पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स को नजर में रख के ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये था हमारा 3rd 5 ईयर प्लान, और इसमें यहाँ पर 1951 to 1966 इसको हम बोलते हैं नेहरूवियन एरा और नेहरूवियन लीगेसी। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये 3rd 5 ईयर प्लान। अब हम आते हैं सेकेंड फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज पीरियड ऑफ स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो स्टडी मटेरियल है ये आपको ग्रुप पे आ जाएगा, इसको आप रीड कर लेना और फिर यहाँ से हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।